Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit, and here we're gonna start the first class of grade 10th trigonometry chapter. Okay, like most awaited chapter, everyone was waiting it for so long. So finally we are here. I'm very happy to see each one of you. Yes, we are like meeting after a very long time. Hope you are doing well. Like we are meeting in especially in a academic class, right? So hope you are doing well, awesome as always, and you are ready for this class. So let's get started with today's class without any further delay. I'm your mathematics professor Lalit Rangavat. I heartily welcome each one of you in our today's session. Okay guys, so here we go with the first class, and ding 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 ding. Yes, we'll start with this quote. The quote is saying that it's never too late to make things right. Okay, if you want to be like your best in your grade 10, especially in maths, trust me, maths is very interesting. Just you have to trust the process and do what I'm saying, right? Okay, so even right now we can basically get very good marks, which is first motive of most of the students out there, and generally everyone is saying the same. Yes, so that is the first thing, we can get very good marks till now if you start from today as well. Second thing, when we talk about eventually from now onwards, if you'll start, you will feel that why maths is so interesting. Okay, even you can do right now big in your life, and you can still make a lot of changes. Just the point is you have to be disciplined. Okay, it's not you are not talented, just you are being a bit lazy, right? So be focused. Let's get started with today's class without any further delay. Okay, so that's the meaning of our today's quote. It's never too late to make things right. And I know you are excited to see Virat Kohli or whatever, Messi or Ronaldo, whoever you like the most. Okay, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So trigonometry part 1. Ding ding ding. My name is Lalit Rangavat. I'm teaching from the past 6 years. Okay, I'm taught online, offline in India is one of the best coachings, right? I was having my own coaching also in my college time and everything. So with that experience, I try to teach you a few important things. We discuss a lot of life skills as well. You can just see our channel as well, and slowly we are uploading those videos as well. Okay, so I learn from you, you learn from me. That's how we grow as an individual. Okay everyone, so let's get started as quickly as possible. So we'll discuss introduction and trigonometric ratios, and here we go. Since this is first class, I don't want to stretch it too much, and please let me know in the comment section what is the ideal time for you guys, right? Can you stretch it for like till 40 minutes? Is it okay, or shall we keep it below 30 minutes or whatever? Okay, just let me know. Okay, let's get started with the class everyone. Trigonometry. Gono we write gon, metry. So trigonometry, what does this mean? Tri means everyone, it's 3. Gon, when we talk about is sides, metry means measurement. Okay, so 3 sides, whenever we talk about 3 sides, which obviously when we talk about, we are talking about triangle. So whenever a triangle is involved and we study the relation between the sides and the angles, that is nothing but that branch of mathematics is called a trigonometry. Okay, there are 3 sides, there are 3 angles. If we study relation between them now, is what we call is nothing but trigonometry. Okay, chalo, so we'll start from the basics, right? And चलो तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी. दोज हु आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, बाकी लोग जो हैं वो जानते ही हैं. सो राइट नाउ इन होल चैप्टर आवर मेन इंटरेस्ट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट लिखते हैं, हम हर चीज़ पूरी नहीं लिखेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना. वी डोंट वांट टू स्ट्रेच द वीडियो अननेसेसरी. तो थोड़ा फोकस करो, समझते चलेंगे तो थिंग्स वुड बी इजी. Okay, right angle triangle means one angle is 90 degree. This is the symbol for 90 degree. Right angle मतलब 90 degree. आसान है, आसान है. This is right angle at which angle? BCA. Very good. B, है ना. तो B we know is 90 degree. Angle B is 90 degree. एक और चीज ध्यान रखो. If B is 90 degree, sum of other two angles is, ये आगे use होगा. A plus B plus C is 180 degree. If you have to write B is 90, so A plus C plus 90 is 180. A plus C is 90 degree. Oh, in a right angle, mostly students know one angle is 90 degree, but rarely we focus on the other thing. Sum of other two angle is also 90 degree. Sum of other two angles. है ना, फटाफट just try an example. If
ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, मुझे बता देना ना फास्ट, डायरेक्ट बताएंगे हम। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, व्हाट इज दिस एंगल, है ना। अब डोंट वेस्ट योर टाइम इन 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल टू 180, नो, देयर सम इज 90, दिस इज 30, सो दिस इज 90 माइनस 30 विच इज 60, ग्रेट, ठीक है, फास्ट। और बताएंगे, चलो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, दिस इज 90, दिस इज 45, व्हाट इज दिस, यस 90 minus 45, 45. Oh, both the angles are equal. Isosceles right angle triangle. इसको हम क्या बोलते हैं, isosceles right angle triangle where two angles are 45 degree, this is 90 degree, these two are equal, है ना। चलो ये एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये हमारे काम का आ जाएगा कभी ना कभी। So if there is a triangle where two angles are 45 degree, one is 90 degree, opposite sides are equal, है ना, if angle are equal their opposite sides are equal, so this is what we call is nothing but क्या लिखा था हमने, ये भी दिमाग में आया तो हमने डिस्कस कर लिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टू एंगल्स आर 45 एंड दिस, बढ़िया, ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, एक बार फटाफट ये भी बताई दो, दिस इज 60, दिस इज 30, है ना, डायरेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ अभी हम सीखते हैं व्हाट इज हाइपोटेनस। हाँ, व्हाट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, व्हाट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ओके, थोड़ा सा लैग आ गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस हम ऑल सेट। हाइपोटेनस ओके, आई वाज डिस्कसिंग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज नथिंग बट लार्जेस्ट साइड, पहला ये ध्यान रखेंगे, दिस इज लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेकंड साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल मतलब 90 डिग्री, सो इसकी अपोजिट वाली साइड, सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, राइट, अपोजिट साइड, दिस इज ऑलवेज द हाइपोटेनस। इन दिस ट्राइंगल विल से AC इज हाइपोटेनस। सबको समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, और मैं केस बताऊं, सब बताएंगे हाइपोटेनस, यस यस, चलो बढ़िया। तो देखो क्या है, फटाफट देख के ये बताएंगे, ये ट्राइंगल है ACB, हाइपोटेनस AC, बहुत बढ़िया। चलो ओहो, सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, इसमें बताओ मुझे CBA, इसमें भी AC हाइपोटेनस, ओहो क्या बात है। चलो थोड़ा सा टफ कर दूं, थोड़ा सा, ठीक है, चलो अब बताओ ACB, अब कौन सा है, CB, AB, क्या बात है क्या बात है, सब बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं हमारे। AB हाइपोटेनस होगी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और, एक लास्ट, ABC, BC, चलो ठीक है, तो अब सबको सब पता है, कुछ किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हाइपोटेनस एकदम क्लियर कट है। चलो थोड़ा सा सर एक और टफ हो जाए, थोड़ा सा टफ, ठीक है, थोड़ा सा टफ है ना, तो थोड़ा सा सोच के बताएंगे सभी लोग। अभी दिमाग में आया मेरे, अभी दिमाग में, आई कैन जस्ट इमेजिन दिस आर माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लासेस गोइंग ऑन ऑनलाइन वेयर आई यूज्ड टू टेक, है ना। कभी लाइफ में हम फेमस हो गए गलती से, तब ये वीडियो डाउन ना हो जाए अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लें, सो आई विल जस्ट स्किप दैट, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो ठीक है, अभी इसमें बताना है हाइपोटेनस कौन कौन से हैं, ये बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फास्ट फास्ट, एकदम ही ऐसा लग रहा है वही ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास, पर चैट नहीं दिख रही है राइट में, बट ठीक है, ओके, सो वेरी गुड। फर्स्ट इज 3 राइट एंगल ट्राइंगल, ऑसम गाइस। पहले हम ये वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, दिस इज AB, तो पहले हाइपोटेनस इज AB, इन विच ट्राइंगल, ABD ट्राइंगल में बोलेंगे, है ना, ABD ट्राइंगल में। फिर सेकंड वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ADC, सो AC हाइपोटेनस होगी। और बहुत बढ़िया एक बड़ा ट्राइंगल भी तो है ABC, सो BC हो गई हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया ना, क्योंकि देखो समझ में आएगा ना, फील आएगा तो खुद क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, और मजा आएगा तो फिर पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, और मेन पर्पस यही है, सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित का, ठीक है। चलिए, तो ओके, ये समझ में आएगा हाइपोटेनस। अब हम समझते हैं, तो पहले हाइपोटेनस सबको क्लियर कट है, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। थोड़ा हैंडराइटिंग पे हम ध्यान नहीं देंगे ज्यादा, है ना, अच्छे से धीरे धीरे सजा के लिखने, समझने में, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है हमारी, ओके। चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज अपोजिट एंड व्हाट इज एडजेसेंट, ये हम समझते हैं। परपेंडिकुलर एंड बेस भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है, आई प्रेफर दिस। इफ यू हैव रिमेंबर बाय एनी पंडित मेथड और एनी मेथड, है ना, बहुत सारे कुछ होते हैं, पंडित गोस दिस एंड दैट, आई डोंट प्रेफर दैट,
ठीक है, एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करता, बट इफ किसी ने याद कर लिया बेस्ट, प्लीज रिमेंबर दैट, है ना, गो विथ वन मेथड, ठीक है, बिकॉज आई पर्सनली फील कि वो याद नहीं करते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अपोजिट एडजेसेंट क्या होता है? अपोजिट मीन्स अपोजिट सामने वाली खिड़की में, है ना, सामने वाली खिड़की में कोई तो रहता है, उसी की बात करें। एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी मीन्स नेबर, है ना, दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, नेबर। सामने वाली खिड़की मीन्स दोज हु लिविंग इन फ्रंट ऑफ योर विंडो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब हम एंगल्स की तरफ देखेंगे। अभी हम कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं एंगल सी पे, एंगल सी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, विल डिस्कस विथ आइदर ए और सी, दिस टू एंगल्स। फॉर बी वी वोंट डिस्कस अपोजिट एडजेसेंट, because this side will always by birth would remain hypotenuse. Hypotenuse cannot be opposite or adjacent. उस केस में उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, 90 डिग्री का अलग केस होगा, बट ठीक है भाई। नाउ लेट्स डिस्कस फॉर सी। फॉर सी अपोजिट, सामने वाली खिड़की, हु इज लिविंग इज ए बी, ए बी इज अपोजिट, बहुत बढ़िया। नाउ फॉर ए बी एडजेसेंट, फॉर सी सॉरी, सी एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी। सो फॉर सी दिस आर द टू साइड्स, दिस इज adjacent. For this angle, this is also adjacent. So which to take? This is hypotenuse, so ignore this. This side will take as adjacent. Clear है सभी को? तो हमें समझ में आ गया। So CB is my adjacent. CB is my adjacent. ये क्लियर हुआ सबको? CB क्या हो गया? Adjacent. ठीक है, अभी A की बात करते हैं, है ना, एकदम क्लियर कर लेंगे ये, ताकि किसी एक भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पे अपना टाइम दे रहा है। एंगल A के लिए बात करते हैं। एंगल A, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड तो दिख ही जाएगा अभी। चलो फटाफट बताओ, एंगल ए के लिए क्या होगा? दिस साइड, ये अपोजिट, सामने वाली खिड़की, सी बी इज अपोजिट, एंड ए सी इज एडजेसेंट। नो, ए सी इज ऑलवेज हाइपोटेनस ए बी, इसके लिए पड़ोसी क्या हो जाएगी? ए बी, ए बी इज एडजेसेंट। अपोजिट एडजेसेंट क्लियर हो रहा है? और क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आएगा। तो ये बता दो मुझे फटाफट, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना, तो सब क्लियर कट हो जाएगा। This is 90 डिग्री, this is angle B. So tell me hypotenuse, hypotenuse को हम H ले लेते हैं, opposite को ले लेते हैं, adjacent को A ले लेंगे, ठीक है। चलो hypotenuse, this is 90 डिग्री, this is hypotenuse. Now for angle B, angle B के सामने वाली खिड़की में this is opposite, for angle B this is adjacent. बढ़िया, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। for angle C, angle C hypotenuse, hypotenuse remain same, वो हमेशा सेम है। सामने वाली खिड़की में is this, so this is opposite. For angle C and this is पड़ोसी, दिस इज एडजेसेंट। क्लियर हो गया? हाइपोटेनस अपोजिट एडजेसेंट। अरे बोलो यस और नो गाइस, अरे अरे बोलो, अरे चलो बहुत ही सही, ठीक है। और एक बार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल दिमाग में जोर से आ रहा है, ठीक है। ए बी सी डी, चलो अब बता दो इसके लिए क्या क्या कुछ कुछ है। फॉर एंगल ए, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? ये ट्राइंगल बात कर सकते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एंगल दिस इज 90 डिग्री, इसके सामने वाले दिस इज ऑलवेज हाइपोटेनस, ओके। चलो नाउ एंगल ए विच इज अपोजिट, दिस इज बी डी, बी डी इज अपोजिट फॉर एंगल ए एंड दिस इज एडजेसेंट। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वाओ क्या मस्त सन दिख रहा है अभी यहाँ से। आई कैन नॉट जस्ट स्विच द कैमरा, बट यस इट्स लाइक वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। ओके लेट्स फोकस, लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड गाइस। दिस इज बी, बी के लिए सामने वाली दिस इज अपोजिट, this is adjacent. Oh means for this two opposite and adjacent would be replaced. Yes, opposite adjacent आपको क्लियर है कि नहीं? yes or no guys? वीडियो would be प्रीमियर में yes और no लिख देना है, ठीक है, वहां पे मैं चैट देख लूंगा। बहुत बढ़िया गाइस, आगे चलें। अभी इतना हमने टाइम सिर्फ इसी पे दिया है ताकि साइन कॉस सबको बैठ जाए दिमाग में ना, वेरी बेसिक, बिकॉज दिस चैप्टर ट्रस्ट मी बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेड 10th 11th 12th सब में काम आएगा। चलो अब हम आ जाते हैं, अब हम क्या रेशियो देखते हैं क्या क्या है। ओके एक ही मैं ट्राइंगल लेता हूं, ए बी सी। नाउ देखो ये एंगल है ना, एक सेकंड रुको, इसको हम ए सी कर लेते हैं। हाँ, अभी ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ए बोलते हैं, इसको हम एंगल ए बोलते हैं। फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? कुछ भी वेरिएबल, वेरिएबल हम क्या मानते हैं? ऑलवेज वी अज्यूम वेरिएबल एज एक्स वाई जेड, है ना, बचपन से ये पढ़ता है। अभी इसमें कुछ थोड़ा अजीब सा कर देंगे, वी अज्यूम दिस एज ओ, ये क्या हो गया? ओ के बीच में, अरे इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा, थीटा के एंगल ही है, कुछ नहीं है, एंगल ही है, 30 डिग्री 40 डिग्री, इट्स जस्ट अ वेरिएबल, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। थीटा, देन वी एट टाइम्स विल टेक थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, और भी कुछ आता है क्या? बस ठीक है, इतना ही आना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। ए बी सी डी एन सब फलाना ढिमकाना, ओके।
सो थीटा अल्फा बीटा है ना, दिस आर जस्ट द वेरिएबल्स. तो डरना नहीं, ओह क्या हो गया समझ नहीं आ रहा. सो इफ आई राइट हियर फॉर एग्जाम्पल थीटा, तो मीन्स एंगल ए इक्वल टू थीटा, बस, और कुछ भी डरने वाली बात नहीं है ना. तो डरना नहीं है. ओके, आई एम देयर फॉर यू. तो ये क्लियर है हमें, बहुत ही बढ़िया गाइस. आगे चलते हैं इसी के बाद. अब नाउ लेट्स से दिस इज ए, अच्छा दोनों बी हो गया, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज बी. अभी रेशियो, नाउ आई एम टेकिंग रेशियो ऑफ साइड्स. क्या क्या पॉसिबल है, कोई भी रेशियो बताओ. ए अपॉन बी सही है, ए अपॉन बी होगा तो बी अपॉन ए होगा, बहुत बढ़िया. ए और बी हो गया. फिर अभी इन दोनों को ले लेते हैं. बी अपॉन सी हो सकता है, सी अपॉन बी हो सकता है, बढ़िया. और क्या बचेगा, ए बाई सी, दिस इज सी बाई ए, बढ़िया. हाउ मेनी रेशियोज, 6 रेशियोज. और कुछ है क्या, सोच लो दिमाग में. अभी सी बाई सी कोई नहीं करेगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू साइड्स, any two sides, right? So 6 ratios. So this 6 ratios have 6 names, है ना, full names. Names क्या क्या है, sine, angle, sine of angle A, then cosine of angle A और angle B, angle C, कुछ भी लिखो, cosine of any angle, then tangent. tangent वो छू के मेरे मन को किया तूने इशारा, एक लाइन पर टच होके जाए वो टेंजेंट होती है. हाँ, बट अभी विल नॉट गेट इनटू डेरिवेशन इन स्टफ, राइट, वो तो नहीं चलना है. साइन कोसाइन टेंजेंट, देन क्या होता है, अरे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, अरे अरे ठीक है. ओके, देन क्या हो गया, कॉट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल है. ये सब क्या सर समझ नहीं आ रहा, सब आएगा, रुको तो सही. देन सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल है. देन को सीकेंट ऑफ एंगल है. अरे तो बहुत ही टफ नाम है ना सर. जैसे आपका नाम ललित रंकावत है, बहुत बड़ा नाम है, कुछ छोटा नाम हो सकता है क्या, ललित जैसे, मतलब ललित रंकावत जैसे सरनेम इंक्लूडिंग नेम, तो विथ नेम इज ललित. और कुछ निक नेम, मेरा निक नेम तो है कुछ कुछ भी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू निक नेम दिस, तो इजी नाम है ना, इजी नेम. 6 रेशियो 6 निक नेम्स. क्या है, साइन, ई हटा दो, ए, इसका मतलब क्या होता है, साइन ऑफ ए. देन कॉस ए, ओहो, टेन ए, ओहो, कॉट ए, ओहो, दिस इज सेक है, ओहो, कोसेक है ना, इजी. अरे बहुत बढ़िया, ये नाम याद हो रहे हैं, धीरे धीरे देखते चलो. साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ठीक है. बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा भी हो सकता है. कहीं पे आपको दिख जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप सब हैबिचुअल होते जाओ इन सबसे, ठीक है. चलो अब मैं बस रेशियो बता देता हूँ. डिस्कस तो करने का बहुत मन है, बट ठीक है, टाइम कांस्टेंट भी है, करते हैं. चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट है, तो सबका बेस फॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है. अब हम आ जाते हैं, इतनी जो हमने मेहनत करी है, सबको सब कुछ क्लियर है बहुत ही बढ़िया से. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ओके, नाउ आई एम टेकिंग दिस एंगल एज ए. सो फर्स्ट आई विल, फॉर एंगल ए, दिस विल ऑलवेज रिमेन हाइपोटेनस. फॉर दिस, दिस इज नथिंग बट अपोजिट, एंड दिस इज एडजेसेंट, पड़ोसी. पड़ोसी वाली खिड़की में, सामने वाली खिड़की में, ठीक है, बढ़िया. नाउ फर्स्ट आई विल राइट नथिंग बट साइन थीटा, साइन थीटा और साइन ए. अब ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन इज डिफाइंड एज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट कितना हो जाएगा, सी बी, हाइपोटेनस इज ए सी. इजी है, इजी है. कॉस ए, कॉस ए कितना होगा, देखो धीरे धीरे हैबिचुएटेड हम होंगे, डरना नहीं है. कॉस ए इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. दोनों में सेम, नीचे एडजेसेंट कितना है, ए बी, दिस इज ए सी, ठीक है. चलो बढ़िया. अभी टेन, साइन ए, कॉस ए, टेन ए. टेन ए क्या होगा, टेन भी इजी है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन, ये बहुत लोग याद करते हैं, बट ट्रस्ट में 5 क्वेश्चन देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा. दिस इज बी सी अपॉन ए सी, अरे ए बी, इसको भी फिर वही लिख लेते हैं, ऑर्डर डिस्टर्ब नाउ. दिस इज, ठीक है. ओके, कुछ कुछ दिमाग में बैठ रहा है, थोड़ा थोड़ा, कुंचुम कुंचुम. यस, ओके गाइस. सो व्हाट डज दैट मीन, साइन ए इज द रेशियो, राइट, of two sides when we talk about opposite upon hypotenuse, BC upon hypotenuse, opposite hypotenuse, cos is adjacent hypotenuse, याद कर लेना है. tan is opposite upon adjacent. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके. इसमें आप थोड़ा सा कुछ चेंजेस देखेंगे, देखते हैं. tan A, let me find out opposite upon, ओके, थोड़ा उल्टा चलें क्या लाइफ में, या सीधा चलें, उल्टा चलते हैं, सीधा चलें, उल्टा उल्टा चलते हैं. बी सी
डिवाइडेड बाई ए बी. नाउ आई एम डिवाइडिंग बोथ दिस साइड बाई ए सी. क्या ये हम कर सकते हैं? थोड़ा सा सोचो. ए सी कैंसिल, वन इन द सेम थिंग. अरे 4 डिवाइड बाई 5 है. इफ आई एम डिवाइडिंग दिस बाई 6, डिवाइडिंग बाई 6, 6 कैंसिल, 4 बाई 5 होगा. तो ये कर सकते हैं? कर सकते हैं. क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा. नाउ बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी. बी सी अपॉन ए सी कितना है? साइन. दिस इज नथिंग बट कॉस. ओ, तो इनके बीच में भी एक रिलेशन है. हाँ, सो tan ए इज साइन अपॉन. थोड़ा थोड़ा सर समझ आ रहा है बट कंफ्यूजन है. होगा होगा, नॉर्मल है, सबको सेम फील हो रहा है ना. फर्स्ट टाइम एवरीवन फेल्ट द सेम, सो इट्स कंप्लीटली ओके टू वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, है ना. तो ट्रस्ट द प्रोसेस. चलो आगे चलते हैं लाइफ में. ये फर्स्ट हुआ. अब ये 3 हो गए. आगे चलते हैं. अब कुछ नहीं करना, बस अब देखो चीजें कितनी आसान है. रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल सबको आता है. रेसिप्रोकल क्या हो गया? 2 का रेसिप्रोकल इज, सॉरी 2/3 का रेसिप्रोकल इज 3/2. 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1. 3 का रेसिप्रोकल 3/1, 1/3. ठीक है. -4/7 का रेसिप्रोकल -7/4. ठीक है. रेसिप्रोकल सबको आता है. तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए कितना होगा? 1/sin ए. ठीक है, 1/sin ए हो जाएगा. चलो तो ये लिख लेते हैं. तो उसको हम डिफाइन करते हैं cosec a. cosec a is 1/sin a. Just remember this. Don't remember hypotenuse, opposite, ना just ये, क्योंकि दिस आर रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज, ये आगे फॉर्मूलाज ही है, तो इनको ऐसे ही याद कर लो. फिर cos हो गया, फिर दिस इज sec a. sec a is 1/cos a. होले होले. cot a is 1/tan a. ठीक है. और ये फॉर्मूलाज ध्यान रखने, 1 2 3 4 5 6, और जो हमने ऊपर लिखा है ना. ऊपर अभी हमने लिखा है, क्या लिखा है? tan a is sin a upon cos a, and we have cot a. cot a is 1/tan a, इसका रेसिप्रोकल cos a by sin a. क्या ये याद हो रहा है? फील आ रहा है? इजी है? इतना हम सोच पा रहे हैं. थोड़ा थोड़ा स्लोली. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन करते हैं, फिर आप सभी मुझे बताएंगे क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है बहुत इजी, फॉर्मूला है. क्वेश्चन ये है कि एक ये ट्राइंगल है. ठीक है. ए बी, चलो ए बी सी, है ना. इजी से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज there is a triangle ABC, right angled at B. right angled at B मतलब समझ में आ गया. B पे 90 डिग्री है. B और A और C को कुछ भी उल्टा करो. ठीक है. क्वेश्चन में गिवन है AB is given as 12 centimeter. AB is 12 centimeter. AC is given as 13 centimeter. Find all the 6 trigonometric ratios. 6 trigonometric ratios. अरे क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा. सब आएगा, मैं हूं ना. AB is 12, AC is 13. अभी एक है ना, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा दिमाग में रखो. पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है क्या होता है. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम. अभी हर एक लॉन्ग स्टेप्स लिखना वो सब अभी हम नहीं करेंगे ना, बोर्ड के लिए पेपर नहीं लिख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं. सो दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 13 स्क्वायर. AB स्क्वायर कितना है पता नहीं, 12 स्क्वायर पता है. क्यों नहीं पता? BC स्क्वायर निकालना है. 13 स्क्वायर इज 169, दिस इज 144 प्लस BC स्क्वायर. BC स्क्वायर इज, गलती मत करना, उधर लेके माइनस कर दो. BC स्क्वायर इज 25. BC इज प्लस माइनस 25, बट साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो BC इज 5 सेंटीमीटर. ये आ गया 5. क्या आसान है? बिल्कुल आसान है. आगे चलते हैं. दिस इज 5, दिस इज 12. अब तो सब खत्म है. क्या चाहिए? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल ए. चलो एंगल ए पे लिखते हैं. सबसे पहले हम स्लोली चलेंगे. साइन ए. साइन ए होता है, अभी हमने सीखा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट, इसके लिए सामने वाली खिड़की में कौन है? BC अपॉन AC. रिमेंबर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. BC AC करोगे तो सब गलत हो जाएगा, ये याद मत करना. दिस इज 5/13. अच्छा, बहुत बढ़िया. कॉस क्या होगा? दिस इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट कितना है? AB अपॉन AC. डायरेक्ट जिनको समझ में आ गया वो लिखते चलो, बाकी धीरे धीरे हम समझेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है. सबको जीतना है, एक को थोड़ी जीतना है. tan इज अपोजिट
अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना है, इसके सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, 5, सॉरी बी सी अपॉन ए बी 5 बाई एडजेसेंट 12। इसको साइन बाई कॉस भी कर सकते थे, 5 बाई 13, 12 बाई 13, 13 कैंसिल, 5 बाई 12 आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया। और बाकी बताओ, बाकी कुछ नहीं करना। कॉसेक कितना होता है, 1 अपॉन साइन ए, कितना हो जाएगा 13 बाई 5 है, इतना आसान है बिल्कुल। सेक ए कितना, बस ये याद रख लो फर्स्ट वाला, कॉस ए कितना हो जाएगा 13 अपॉन 12। हाँ, फिर कितना आ गया कॉट ए कितना हो गया 1 अपॉन 10 है। अरे क्या बात है गाइस, 12 बाई 5। बताओ आसान है कि नहीं, बताओ इजी है कि नहीं, है ना। चलो सही है। अब मैं ये बोल रहा हूँ एक दो और फाइंड करते हैं, इसमें थोड़ा सा और अपस्केल करते हैं ना, लेट्स अपस्केल आवरसेल्फ। मुझसे ये पूछा है व्हाट इज tan c, और एक और देख लेते हैं व्हाट इज cosec c, और एक और देख लेते हैं व्हाट इज sin c। तो मैं फाइंड करता हूं तीनों। पहले मैं फाइंड करता हूं sin c। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब c एंगल के लिए अपोजिट क्या है, सामने वाली खिड़की में कौन रह रहा है 12, और हाइपोटेनस कौन है 13। बिकॉज c के लिए अपोजिट विल चेंज, एडजेसेंट इज 5, अपोजिट सामने वाली खिड़की में इज 12, है ना। उतना इसके लिए टाइम दिया था ताकि ये दिमाग में फटाफट क्लिक हो, है ना। ट्रस्ट मी स्टूडेंट, गेट कंफ्यूज इन दिस ओनली। साइन ये हो गया। अब कॉसेक फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन सी, तो रेसिप्रोकल कर देता हूं मैं 13 अपॉन 12। लास्ट tan कितना होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसके सामने वाली खिड़की में कौन है 12, एडजेसेंट में कौन है 5, 12 बाई 5, है ना। ये बोनस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो गाइस यस और नो। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है ना, बस फिर क्लास एंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल एट बी, है ना। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है साइन ए इज 3/5, फाइंड ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। अभी हैंडराइटिंग में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो आपको समझ में आ रहा है। मैं धीरे धीरे लिखूं उसमें कोई मतलब नहीं है। तो जो भी एंगल गिवन हो ना, ऑलवेज उसको नीचे रखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऊपर लिखोगे, तो ये एक अनसेड रूल हो गया। ठीक है, अभी साइन ए, चलो हम लिखते हैं साइन ए इज 3/5। चलो कलर विच कलर, व्हाइट कलर। साइन ए कितना हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना होता है अपोजिट, इसके सामने वाली खिड़की में बी सी ए सी, तो क्या आया बी सी अपॉन ए सी आया 3/5। अब ये ना बी सी कितना होगा और ए सी कितना होगा। अब जो बोल रहे हैं 3 और 5 वो पूरा सही नहीं है, क्यों देखो अभी सीखते हैं। मान लेता हूं मेरे पास 30 चॉकलेट है और आप जो बैठे हो आपके पास 50 चॉकलेट है। रेशियो कितना होगा हमारा 3:5। अच्छा, आपके पास 3 चॉकलेट है, मेरे पास 3 है, आपके पास 5 चॉकलेट है, तभी भी रेशियो 3/5। अच्छा, आपके पास 60 है, मेरे पास 100 है, रेशियो क्या आ गया 3/5। अभी क्या समझ में आ रहा है हमें कि इफ द रेशियो इज 3/5, कैन आई से कि आपके पास सिर्फ 3 चॉकलेट है और मेरे पास 5 चॉकलेट है। क्या ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 × 1 5 × 1, दिस इज 3 × 10 5 × 10, दिस इज 3 × 20 सॉरी 5 × 20। तो कुछ एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार। पहले बार आपके पास थी 3 × 1, मेरे पास 5 × 1, 3 × 10 5 × 10, 3 × 20 5 × 20। अभी हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता तो हम उसको k मान लेते हैं। k एक्चुअली क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बट k कुछ भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, k कैन बी एनी नेचुरल नंबर। तो हम मान लेते हैं कि वो कितनी होगी 3k और 5k। क्या समझ में आ रहा है? मैं लॉन्ग मेथड से बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आप गलत ना करो ना, थोड़ा एग्जाम के हिसाब से बता देता हूं। ठीक है, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो BC कितना आ गया हमारे पास, BC हमारे पास आ चुकी है लेंथ 3k यूनिट्स, है ना। कुछ भी यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर मीटर तो हम यूनिट लिख देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज 5k। अभी फर्स्ट क्या हम फाइंड करेंगे AB। कैसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस। क्या बात है, सभी लोग कितने स्मार्ट मेधावी छात्र हैं। वी हैव ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वी हैव छात्रा एंड छात्राएं। ठीक है, चलो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये कितना है 5k स्क्वायर, BC कितना हो गया 3k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये एक ब्लंडर है जो बहुत बच्चे कर देते हैं, इसको होल रखना है। अभी स्क्वायर करेंगे, मेनी स्टूडेंट्स राइट 5 स्क्वायर, नो दिस इज 25k स्क्वायर, दिस इज 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना आ गया 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर इज 16k स्क्वायर, ए बी कितना होगा अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट 16 कितना हो गया 4, अंडर रूट k स्क्वायर k, ए बी कितना आ गया 4k। अब कुछ बचा है क्या बताओ, अब क्वेश्चन में कुछ भी बचा है क्या, कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो बस अब तो लाइफ सेट है हमारी, हम फास्ट सॉल्व कर देते हैं। अब पहले लिख लेता हूं मैं साइन ए, साइन ए कितना होगा, अरे वो तो गिवन है क्यों लिखना है, चलो कॉस ए इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट कितना है 4k अपॉन 5k, अब डायरेक्ट लिख सकता हूं ना मैं, पड़ोसी अपॉन, है ना, दिख रहा है सबको 4/5, ठीक है। tan में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सामने वाली खिड़की में 3/4, 3k/4k, देखो k कैंसिल ही हो रहा है, तो डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना, एमसीक्यू में कर सकते हैं, बट एग्जाम में नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर cosec a इज 1/sin a विच इज 5/3, sec a इज 1/cos a, वो कितना हो गया 5/4, और cot a कितना हो गया 1/tan a, कितना हो गया 4/3। इजी है कि नहीं बताओ, यस एवरीवन, इज दिस इजी और नॉट, साइन इज 3/5, ये सब फाइंड कर लिया, बहुत ही आसान है कि नहीं, यस, फीलिंग ग्रेट, ऑसम। एक लास्ट क्वेश्चन ले लें क्या, थोड़ा सा, एक अच्छा सवाल है ना, मेरा मन है वो क्वेश्चन लेने का, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा रुकेंगे हम, ना थोड़ा सा प्लीज, चलो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, अभी क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन क्या है, राइट एंगल एट बी एंड वो सब चीजें, ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है ए सी बी। अब इस बार मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है tan c is √3, फाइंड ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ओहो अभी रूट में आ गया भाई साहब, क्या करेंगे, अब तो होगा ही नहीं, ये तो टफ हो गया, अरे नहीं क्वेश्चन टफ होगा तो ये तो मजा आएगा ना, सीखेंगे ना, धीरे धीरे लेवल किया, सेम अप्रोच क्या है, tan का फॉर्मूला इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये तो याद हो गया सबको, यस और नो गाइस, बहुत बढ़िया। ए बी अपॉन बी सी, दिस इज √3/1, सो ए बी इज इक्वल टू क्या बताया था √3k, पी सी सर ये 1k लिख दें, हाँ लिख दो, क्या दिक्कत है 1k, हाँ चलो। अब एक लास्ट क्वेश्चन में एक और मस्त चीज बताऊंगा मैं, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या फाइंड करना है सर, ये तो पता ही है, दिस इज √3k, दिस इज 1k, अब हम AC फाइंड कर लेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज √3 स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। अब देखो जिनको रूट में प्रॉब्लम है यहाँ सीख लो फटाफट, √3 स्क्वायर मतलब 3, √5 स्क्वायर मतलब 5, √6 स्क्वायर मतलब 6, √4 स्क्वायर मतलब 2 नहीं होता है 4 ही होगा, कैसे, √3 स्क्वायर मीन्स √3 इंटू √3 विच इज √9, 3 एक ही अप्रोच होती है। सेकेंड अप्रोच इज √3 स्क्वायर 3 पावर 1/2 इंटू 2 कैंसिल, 3 पावर 1 विच इज 3। पॉइंट इज डायरेक्ट याद रखो तो बेस्ट है, बाहर आ जाएगा x। सिमिलरली 5 कैन बी रिटर्न एज √5 इंटू √5, ये भी बहुत बार काम आता है ना। 8 कैन बी रिटर्न एज √8 इंटू √8, √8 कैन बी रिटर्न एज √4 इंटू 2, √4 इंटू √2 विच इज 2√2, हाँ ये सब भी ध्यान रखो, है ना। √24 चलो एक डिस्कस कर लेते हैं, √4 √6 विच इज 2√6। थोड़ा फास्ट हूँ, जा रहा हूँ बेसिक समझने के लिए, ठीक है, नहीं पता हो तो थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। √3 स्क्वायर कितना हो गया 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, दिस इज 4k स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC कितना हो गया 2k, है ना, अंडर रूट ले लेंगे हम, अंडर रूट, ये हो गया 2k। अब कुछ बचा है क्या लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा, सब अब देखो कैसे फर्राटा आंसर देंगे सभी बच्चे। tan c आ गया, tan c तो पता ही है, tan c पहले sin c से स्टार्ट करते हैं ना, हमारा वो क्या सिद्धांत है, साइन हमारा बेस्ट है, sin c विच इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट कितना है इसके लिए √3k/2k, डायरेक्ट लिख दूं मैं √3/2, अब डायरेक्ट लिखेंगे k हट जाएगा ना, k के नहीं के, cos कितना होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 1/2, डायरेक्ट एडजेसेंट, k कैंसिल, tan तो लिख ही लिया है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे, tan क्वेश्चन में है ही, बट √3/1 √3, ठीक है। अभी cosec c 1/sin c which is 2/√3, sec c is 1/cos c which is 2/1 which is 2, and cot c which is 1/tan c which is 1/√3, ठीक है। चलो आसान है कि नहीं बताओ, अरे बोलो यस नो गाइस, है ना, इजी लिख सकते हैं, चलो बताओ कितना मस्त है कि नहीं। एक चीज जो लास्ट क्वेश्चन में भी एप्लीकेबल है, दिस इज 3 4 5,
इस क्लास क्वेश्चन में इंटेंशनली क्या लिया है? अरे आ जाओ, 5, 12, 13 इनको क्या बोलते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? कोई एक पेज यहीं लिख देते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, है ना? कौन कौन से होते हैं? 5, 12, 13, डबल कर दो 10, 24, 26, हाँ ये हो गया फर्स्ट, और डबल भी करते जाओ तो सेम ही है। फिर क्या हो गया? 12, 5, 13, अरे सेम ही लिख रहा हूँ मैं, क्यों सेम लिख रहा हूँ? हाँ 3, 4, 5, बच्चों वाला तो छोड़ दिया मैंने। 3, 4, 5, देन 6, 8, 10, ये दोनों बहुत काम आते हैं। 16, 16, 20 वो बहुत काम आता है, ठीक है। फिर और हो गया 13, हाँ 15, 8, 17, 15, 2, 25, 64, 17, है ना? ऐसे मेरे दिमाग में भी 3 आ रहे हैं, मतलब ऐसे 5 लिख देंगे हम। और भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स रहते हैं, तो जस्ट मेक श्योर यू नो दिस ट्रिपलेट्स, राइट? तो ये बेसिक्स हो गए हमारे। और 15, 8 बस, ठीक है, और कोई दिक्कत की खास बात है नहीं। और दिमाग में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, सो इट वुड बी इजी फॉर अस। ओके, तो रिवाइज कर लें, फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया इस कोट के साथ, एवरीवन, इट्स नेवर टू लेट टू मेक थिंग्स राइट, स्टिल यू कैन डू। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, माय नेम इज ललित एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। Right angle triangle 90 degree. If angle B is 90 degree, sum of other two is also 90 degree, है ना? Hypotenuse largest side, side opposite to largest angle, ये हमेशा hypotenuse रहेगा। AC hypotenuse, isosceles right angle triangle, this are 45, 45, 90 degree भी और isosceles भी हो, ठीक है। चलो बढ़िया। So hypotenuse हमने लिख लिया, सीख लिया। Opposite means सामने वाली खिड़की में, adjacent means पड़ोसी वाली खिड़की में, ठीक है। Opposite, adjacent, हाइपोटेनस कभी भी एडजेसेंट या अपोजिट नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हमने देख लिया, हाइपोटेनस, अपोजिट, एडजेसेंट। 6 रेशियोज आर पॉसिबल, 6 हैव बिगर नेम, 6 हैव निकनेम्स, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा आर नथिंग बट एंगल्स, है ना? डरना नहीं है। साइन इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। कॉस इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, टैन इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब सब इजी है। कोसेक 1 बाय साइन, सेक 1 बाय कॉस, कॉट 1 बाय टैन, टैन इज साइन बाय कॉस, कॉट इज कॉस बाय साइन। अरे इजी है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। चलो फिर दिस क्वेश्चन 5, 12, 13, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब तो सब बच गया है, कुछ हुआ ही नहीं, रख दो, सब में आंसर हो गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखना है। चलो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ये ध्यान रखेंगे। चलो बढ़िया। इफ दिस इज साइन इज 3 by 5, दिस इज 3 के, दिस इज 5 के, अज्यूम दिस इज 4 के, मतलब 4 के पाइथागोरस थ्योरम लगा के। गलती, 5 स्क्वायर इज नॉट 5, इज 25, ये हम ध्यान रख लेंगे। चलो फिर हम बाकी सब फाइंड कर लेंगे। के कैंसिल हो जाएगा, के जगह कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लो, टी मान लो, कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 10c √3, एक और क्वेश्चन देखा, √3 से डरना नहीं है, √3 का स्क्वायर इज 3 ओनली। चलो ठीक है, तो ये हमने ध्यान दे दिया। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर ऑसम एज ऑलवेज, है ना? अभी थोड़ी मैं फास्ट लिखने से हैंडराइटिंग और खराब कर लिया। ओके, सो SLQ रखते हैं। व्हाट इज SLQ? दोज आर सीइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सरप्राइज लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब रिवर्स पजल। देखो R प्लस R, दिस इज सम ऑफ R, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? समर, दिखा समर, है ना? अब इसको रिवर्स पजल बोलते हैं। तो अब हर क्लास में हम एक रिवर्स पजल रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आंसर डिस्क्लोज करेंगे। चैट में मुझे बताना, कमेंट में आई ये लिखा हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है AH एक्सक्लेमेटरी साइन। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? हिंट इज वन वर्ड, ठीक है, क्लियर है। So thank you so much guys, I'm so happy to make the video for grade 10 student, which was for so long I was waiting because of time constraint and everything. Okay, so hope that is very useful. Please share with your friends as much as possible. You know the drill. Like the video, comment what was the favorite part, answer SLQ's answer. Okay, comment करना है, share with your friends, subscribe with your friends, है ना? सबके साथ share करो, sharing is caring. और चैनल भी ग्रो हो, आप भी ग्रो, हम भी ग्रो, सब ग्रो हो, सब सीखें, आगे बढ़ें, ठीक है। एनीथिंग, एनी रिक्वायरमेंट, ऑलवेज फील फ्री टू कनेक्ट। टेलीग्राम आईडी आप लोगों के पास है ही मेरी, इन केस यू वांट आई विल जस्ट शेयर इट वंस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट, यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम। ओके एवरीवन, चलो टूडल्स, टेक केयर, बाय।